Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and practicing more and more of the objective type questions. Now your paper is also started, your revision test was started. So be ready for that one, and I assume you all are doing your work. Fine. आप सभी कोई अपना काम कर रहे हैं. ओके, चलिए. Now moving to the next question. Sorry, first of all I should write down the details. Date. So today is 8/9/21. आज 8 है. 6 से आपके रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. Okay, 1 second. It's not visible to you. Okay, so I hope now it is very much visible. Date is today 8. Class is 12th C. Subject psychology. So from 6 children you have started your revision test. 6 से आपके revision test start हो रहे हैं. ओके, और आप दे भी रहे हो. You have given the psychology also on 7. So basically children, आपके objective type questions के डिस्कशन हम लोग इसमें करते हैं इन योर वीडियो. आप पेपर भी दे रहे हो, आपने कल भी पेपर दिया होगा, तो यू हैव एन आइडिया अबाउट द पेपर ऑल्सो. और बेसिकली आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच, काफ़ी प्रैक्टिस हम सब ने कर ली है फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो मेनी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू द चैप्टर 3. ओके, तो उसी चैप्टर को फिर से डिस्कस करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं. तो राइट डाउन चैप्टर 3. चैप्टर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. चैप्टर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. तो क्या हो रहा है बच्चों कि आई एम नाउ गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. The main important point is that I told you all that you should have your copy, and in that copy you will write it down each and every question which are discussing over here. Okay, and I just hope आप ये सारे question answer लिखोगे. Now moving to the next question. Question number 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था. So 25 से मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूँ. Write down the question number 25. Knowing you have dash will help you go through knowing you have dash will help you go through a stressful situation more positively. Firstly, children, write down the question. The question is, knowing you have dash will help you go through a stressful situation more positively. ये जानने के बाद कि आप में ये चीज़ है जो आपकी मदद करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मोर पॉजिटिवली लेने में. नोइंग यू हैव, क्या चीज़ ऐसी है जिसको जानने से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पॉजिटिवली ले सकते हो. तो क्या चीज़ ऐसा चीज़ है जो आपको पता है कि आपके पास वो है और ये आपकी मदद करेगा
it will help you to take the stressful situation positively. So options are, it is an MCQs. So options are social self, option are social self, option B identity achieved, identity achieved, identity achieved, option C social support, option C social support, and option D primary appraisal, option D primary appraisal. Social self, social support, identity achieved, primary appraisal. Fine. Knowing you have, आप जानते हो कि आपके पास क्या है जो कि आपकी मदद करेगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पॉजिटिवली लेने में. तो क्या ऑप्शन होगा चलिए? इज इट सोशल सेल्फ, इज इट आइडेंटिटी अचीव्ड, इज इट प्राइमरी अप्रेजल और इज इट सोशल सपोर्ट? तो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है सोशल सपोर्ट. हम ये जानने के बाद कि हमें सोशल सपोर्ट मिला होता है तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पॉजिटिवली लेते हैं. अगर हमें पता होता है कि हमें सपोर्ट करने वाले कई लोग हैं, हमारे पास सोशल सपोर्ट है, तो हम सिचुएशन को कैसे लेते हैं? वी टेक द सिचुएशन पॉजिटिवली. फाइन. सो प्लीज़ नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. आप सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. I just hope you all are writing down the question. Is it clear? Is it understand? So move to the next question. Question number 26. I am giving you the enough time children to write it down the question. Question लिखने के लिए आप सभी को enough time दे रहे हैं कि आप question लिख सकें. So write down the next question. Question number 26. फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ, ये मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, इट इज अगेन रिपीटिंग. सो आप जल्दी से आंसर्स तक कर दो. फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ, फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. फ्रस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. आंसर इज ट्रू और फॉल्स? Frustration one of the sources of psychological stress. Frustration एक सोर्स है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपने पढ़ा होगा अगर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो आप इसका आंसर दे दोगे. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में 3 टाइप्स आते हैं: फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर. सो यस, इट इज अ काइंड ऑफ द सोर्सेस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. सो आंसर इज ट्रू. आंसर इज ट्रू. So note down this question also. Okay, have you written down the question? So I am rubbing the board. Now moving to the next question, question number 27. Question number 27. A student blame his or her best friend. A student blame, ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. स्टूडेंट ब्लेम्स हिज और हर, अ स्टूडेंट ब्लेम हिज और हर बेस्ट फ्रेंड, अ स्टूडेंट ब्लेम हिज और हर बेस्ट फ्रेंड फॉर हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस, फॉर हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस. एक स्टूडेंट है जो कि अपने फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है अपने खुद के परफॉर्मेंस के लिए. अ स्टूडेंट ब्लेम हिज और हर बेस्ट, एक बच्चा है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, फॉर हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है, फॉर हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस. रेदर देन डिवोटिंग टाइम, रेदर देन devoting time
towards studies rather than devoting time toward studies तो एक बच्चा है अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है अपने पुअर परफॉर्मेंस के लिए रेदर देन डिवोटिंग टाइम टुवर्ड्स स्टडी। मतलब पढ़ाई करने की वजह स्टडी करने की जगह वो पुअर परफॉर्मेंस किया क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी और उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आया तो उसके लिए वो अपने फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है। तो ही आप यहाँ तक लिख लो, ये केस लिख लो। I had written it in the big font so that it is properly visible to you all. So next question, मतलब next question नहीं, इसी का ही part है। The next line statement is he or she is said to be using avoidance oriented coping सो ये स्टेटमेंट को आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स। एक स्टूडेंट है वो अपने फ्रेंड को ब्लेम कर रहा है फॉर हिज और हर पुअर परफॉर्मेंस रेदर देन डिवोटिंग टाइम इन द स्टडी, सो ही और शी इज said to be using avoidance oriented coping. So the obviously the answer of this question is true. ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि वो सही में अवॉइडेंस ओरिएंटेड, अपने आप को ब्लेम ना करने की जगह वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, यानी स्ट्रेस से अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग यूज कर रहा है। ओके, चलिए आप इतना ये भी नोट डाउन कर लो। एंड जो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2018 पेपर एज वेल एज इन 19, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 18-19 के पेपर में ये पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कर लिया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने डिस्कस कर लिया। सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अराउंड द 27 क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. Okay, what is the question number 28? This is again a kind of case based. ठीक है, case based है ये। Kareem watches TV. Kareem is the name of a person. Kareem watches TV. Kareem watches TV when he is stressed. Kareem watches TV when he is stressed due to करीम टीवी देखता है जब वो स्ट्रेस में होता है ड्यू टू पेंडिंग असाइनमेंट्स इन स्कूल। उसको स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्कूल में कुछ उसको असाइनमेंट दिया हुआ है जो वो उसने नहीं किया है अभी तक, और उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। पेंडिंग असाइनमेंट्स इन स्कूल, ठीक है, स्कूल से उसको कुछ असाइनमेंट मिला हुआ है जो कि पेंडिंग पे है और उसने नहीं किया है और उसकी वजह से उसे स्ट्रेस हो रहा है। तो उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए वो टीवी देख रहा है। तो आप इसको क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू एंडलर एंड पार्कर, अकॉर्डिंग टू एंडलर एंड पार्कर, according to Endler and Parker. Endler and Parker is the name of psychologist. So according to Endler and Parker, he is using dash mechanism in coping. तो वो कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहा है बताइए? विच मैकेनिज्म ही इज यूजिंग, कौन सा मैकेनिज्म? सो ऑब्वियसली द आंसर इज अवॉइडेंस।
अवॉइड कर रहा है, वो अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है. राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इसे लिख लीजिए आप सभी कोई. एंडलर एंड पार्कर ने कोपिंग स्ट्रैटेजीज दी थी. इसी तरह से लिजारस एंड फॉर्टमैन ने भी कोपिंग स्ट्रैटेजी दी थी. I hope आपने लिख लिया होगा. So we have discussed up to the question number 28 from this chapter. Now moving to the next question, question number 29. Please write it down. जो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा, that was asked in the 2020 paper, means previous year के 1 year paper. So not previous year paper. We are in 2021 ना. चले. Question number 29. Question number 29. Dash are abilities. Dash are abilities. Okay children, थोड़ा सा ये noise को आप जस्ट हटाएंगे क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट होम. सो थोड़ा सा इसको आप अवॉइड करेंगे. ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. ओके ओके चलिए. सो नो डैश आर एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव. अगेन द क्वेश्चन नंबर 29. डैश आर एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव. Dash are abilities for adaptive and positive behavior. Adaptive and positive behavior. Behavior that enable individuals to enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. बताइए. पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन. पहले तो लिख लीजिए, फिर से समझिए व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. द क्वेश्चन इज डैश आर एबिलिटीज फॉर अडैप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. It was asking that कि कौन सी ऐसी एबिलिटीज है अडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर की जो कि इंडिविजुअल्स को इनेबल करती है अच्छे से डील करने के लिए जो भी हमारी डेली लाइफ में चैलेंजिंग और डिमांड्स आ रहे हैं. तो क्या आंसर होगा बताइए. डैश आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enable individual to deal effectively with the demands of challenges and everyday life. So answer will be the life skill. Answer is the life skill. ये मैंने क्वेश्चन कई बार आपसे डिस्कस भी किया है. ठीक है. सो राइट डाउन इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू रब इट. Rub the board. Now moving to the next question, question number 30. Question number 30.
Question number 30 is exercises reduces stress. एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है बाय exercises reduces stress by options are A by raising levels of endorphins, by raising levels of endorphins, by decreasing energy, suppressing immune function, decreasing energy, suppressing immune function, improving aerobic capacity, So 4 options are with you, children. You have to choose what will be the answer. So exercise is one of the stress management technique also. जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड एक्सरसाइज दिया रहता है कि एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है या स्ट्रेस मैनेज होता है. तो एक्सरसाइज रिड्यूस करता है स्ट्रेस को बाय एंडोर्फिन की लेवल को रेज करता है या एनर्जी को डिक्रीज करता है या इम्यून फंक्शन को सप्रेस करता है या एरोबिक कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है. तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर ए, रेजिंग लेवल्स ऑफ एंडोर्फिन. Please note it down this question, children, with their option. So now the 30 question you all have done from this particular chapter. I just hope आपने note down कर लिया होगा. So around 30 question you have done, and in one video around 10 question more I had discussed. That was an extra part. So around 40 question आपने डिस्कस कर लिया. So moving to the next question, which is the 31. Which of the following are the basic sources of stress? Which of the following are the basic sources of stress? First, the environment. B, social stressors. C, physiological. D, all of the above. Which of the following are the basic sources of stress? The environment, social stressor, physiological, all of the above. बताइए क्या आंसर आप करेंगे इसमें? कौन सा बेसिक सोर्स है स्ट्रेस का? What will be the answer? तो आपने पढ़ा होगा अगर बेसिक सोर्सेस की बात हो रही है तो इन्वायरमेंट भी सोर्स होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, सोशल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है. द आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव. Write down some of the student these preparation of the objective type questions are very beneficial, but it depend करता है आपके ऊपर आप
जितना उसका आउटपुट ले पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, a real or perceived threat, a real or perceived threat or a real or perceived threat or challenge that a real or perceived threat or challenge that causes the body to produce a response is a dash। रियल और परसीव थ्रेट, एक रियल या आप कह सकते हैं जो परसीव्ड थ्रेट है या चैलेंज है जो आपकी बॉडी को कॉज करता है टू प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स, उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड। सो ऑप्शंस आर स्ट्रेसर, फोबिया, injury, frustration। The four options are here: stressor, phobia, injury and frustration। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रियल यानी जो वास्तविक है, रियल और परसीव थ्रेट और चैलेंज दैट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, वो थ्रेट जिसकी वजह से बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। सो इट इज नोन एज स्ट्रेसर। ऑप्शन ए, इट इज नोन एज स्ट्रेसर। प्लीज चिल्ड्रन इसे भी क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सो द टू क्वेश्चंस आर डिस्कस विद यू 2 question I am saying, so sorry, 32 questions are discussed with you from this particular chapter। I just hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े, shall we move forward to the next question। Question number 33। Question number 33। Jordan was in a relationship. Jordan was in a relationship. Jordan was in a relationship that she recently, जॉर्डन एक रिलेशनशिप में थी जो उसने अभी खत्म कर दिया। That she recently ended when she found out that her partner was cheating on her। Her partner was cheating on her। जॉर्डन एक रिलेशनशिप थी बट उसने उसे एंड कर दिया क्योंकि उसको पता चला कि जो उसका पार्टनर है वो उससे चीट कर रहा है। She is probably experiencing क्या एक्सपीरियंस कर रही है वो, क्या एक्सपीरियंस कर रही है, बताइए। What she is experiencing।
Options are exhaustion, eustress, de-stress, एंजाइटी। तो ऑप्शन भी आपके सामने दे दिए गए हैं बच्चों, आपको बताना है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज de-stress। वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है? de-stress। So here we have completed about 33 questions. Okay, thank you children.